Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am here to continue chapter number 5, A Different Kind of a School, from class 6. I hope you will be listening to me very carefully and will be understanding the valuable points from the chapter. So now let's continue this. Miss Beam laughed. Oh no, she said. She is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. So, having heard the words from author, Miss Beam हंसना शुरू कर देती है और कहती है means someone whom you have seen. Actually, she is not lame. वो लेम नहीं है राइट क्योंकि दिस इज ओनली हर लेम डे, ये उसका लेम डे है. एंड द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, कि जो बाकी के बच्चे हैं वो ब्लाइंड नहीं है, ये उनका ब्लाइंड डे है. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन. सो हैविंग हर्ड दीज वर्ड्स फ्रॉम मिस बीम, ऑथर stood a little surprised, and again she started laughing. This is a very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one damn day. So here Miss Beam added, she wants to tell him that actually they make their children appreciate and understand misfortune. वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेसिकली बेबसी क्या होती है, दुख परेशानी क्या होती है, मिसफॉर्चून क्या होते हैं. They make their students realize so that they make them share in misfortune too. तो इसी वजह से this is the reason they give them part. They gave them chance to be part. Sometime it is blind day, lame day, deaf day, injured day, or dumb day. Means everybody has got to go through, particularly these days. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight, so they wake blind. Miss Beam added and said that when it is blind day, so their eyes are bandaged, कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, and they have got to be reliable on their work. उन्हें ईमानदारी से अपना काम करना होता है, and they do not have to peep, right? They must not peep. The bandage is put on overnight. जो पट्टी है आंखों पर एक रात पहले, एक रात को बांध दी जाती है, so that they wake blind, ताकि वो अगली सुबह बिल्कुल in the form of blind they wake up, उनके आंखों पर पट्टी बंधी रहे. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. As they wake up early in the morning, and the rest of the students are given duties for helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. Miss Beam says to the author that this is the way, and by this way both the blind and the helpers have got chance to learn, to go through this experience. Even they learn it, they face it.
I hope you understand, my dear students. Now let us move ahead. There is no misery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind, and it is really something of a game. Before the day is over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. So, in this paragraph, now let us know what Miss Beam continue. मिस बीम कहती है कि इसमें कोई दुख परेशानी वाली बात नहीं है. देर इज़ नो ट्रबलसम, देर इज़ नो डिसअपॉइंटमेंट. एवरी वन इज़ वेरी काइंड. हर कोई अपने आप में काइंड होता है. एंड इट्स काइंड ऑफ अ गेम. ये तो एक गेम है एंड इट इज़ द वे ऑफ लर्निंग समथिंग. बिफोर द डे इज़ ओवर, वो दिन ख़त्म होने से पहले, इवन द थॉट वॉज, एक वो बच्चा जो घबराता है या उसके दिमाग में इस तरह की बातें नहीं आती है, तो वो भी महसूस कर लेता है कि बेसिकली मिसफॉर्चून होता क्या है. ही और शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द पेन, द ग्रीफ about the misfortune is. The blind day is, of course, really the worst. But some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. Here, Miss Bim says that there must have been some children who used to come to Miss Beam and said that the blind day is really, of course, the worst day. But on the other side, Miss Beam says that some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. कुछ बच्चे बोलते हैं कि जो ब्लाइंड डे है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है. कुछ बच्चे जो मिस बीम के पास आते हैं और कहते हैं कि जो डम्ब डे होता है, मीन्स व्हेन वी आर अनेबल टू स्पीक, वी आर कंप्लीटली बाउंड नॉट टू स्पीक. डम डे, इट इज़ कॉल्ड डम डे, कि डम डे बहुत बुरा होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ. मिस बीम कहती है कि देखिए, ब्लाइंड में तो ऐसा है कि चलो भाई हम आँखों पर पट्टी बांध देते हैं, बट जस्ट थिंक फॉर अ वाइल अबाउट द जस्ट बाइंडिंग द बैंडेज. ऑलराइट, तो हम मतलब बच्चों के जो मुंह पे हम पट्टी नहीं बांध सकते. सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. नाउ हियर इट इज़ द मैटर ऑफ विल पावर. दे नीड टू हैव सो मच पेशेंस. कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. नाउ यू जस्ट, अब मिस बीम कहती है ऑथर से, now Miss Beam says to author that just come along with me to the ground and you yourself see how the children feel about it, कि बच्चे इस बारे में कैसा महसूस करते हैं. someone who has become blind, someone who has become lame, someone who has become dumb, all right, someone who is injured. So now let's get the experience, how actually they feel, how they sense. Miss Beam led me to one of the bandaged girls. Miss Beam मुझे कहाँ लेके जाती है? She took me somewhere where I find one of the bandaged girls, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam, and left us. And Miss Beam made a very bit introduction to that girl, and she said that here comes a gentleman, and just let's have a talk. And he wishes to ask you something. ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं. Now point number 13. Don't you ever peep? I asked the girl. Oh no, she exclaimed. अब ऑथर ने पूछा, ऑथर asked that
बैंडेज्ड गर्ल, कि क्या तुम इससे कभी पट्टी से बाहर नहीं झाँकती हो? तो वो कहती है, ओ नो, बिल्कुल भी नहीं। शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया, इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो तुम मीन्स you would be having the terrible experience by being blind, right? बड़ा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस होता होगा आपका जब वंस यू बिकम ब्लाइंड। यू कैन नॉट सी अ थिंग, क्योंकि तुम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट, आपको महसूस होता है कि कोई चीज़ आपसे टकरा जाएगी या आप किसी चीज़ से टकरा जाओगे किसी भी पल, एट एनी मोमेंट। इट्स सच आ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, कि बस आपको महसूस होता होगा, मीन्स यू जस्ट फील दैट एनी हाउ, मीन्स आई मस्ट सिट समवेयर। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने ऑथर ने पूछा, ऑथर आस्क्ड दैट बैंडेज्ड गर्ल, कि जो तुम्हारे हेल्पर्स होते हैं, आर दे रिलायबल टू यू, आर दे मोडेस्ट टू यू, डू दे रियली हेल्प यू, लीडिंग यू इन लीडिंग समवेयर? Fairly, but they are not as cheerful as I shall be when it is my turn. Careful, sorry. I take my word back, it is careful. But, yes, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. कि जब मुझे मीन्स when I have got to be blind and it is my turn, I have got to be very much, I have got to be more careful. वो भी केयरफुल होते हैं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, मीन्स स्टूडेंट्स जो पहले मीन्स दे हैव गॉन थ्रू सच एक्सपीरियंस, दे आर द बेस्ट हेल्पर्स बिकॉज दे नो दैट व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस। बच्चे जो पहले इस पार्ट को कर चुके हैं, इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, वो बहुत ही अच्छे हेल्पर्स होते हैं बिकॉज दे हैव गॉट दिस एक्सपीरियंस। इट्स परफेक्टली घैसली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई। कि बड़ा ही मतलब घैसली का मतलब होता है हॉरेंडस, टेरिबल, बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है कि हम बैंडेज आंखों पर लगी रहती है, हम नहीं देख पाते, वी आर अनेबल टू स्पीक, राइट, वी आर फॉरबिडन टू सी। आई विश यू वुड ट्राई। तो जो लड़की है वो बोलती है कि मैं चाहूँगी कि तुम भी कोशिश करो, ओके। तो शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, ऑथर ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं मतलब लेके चलूँ? आई होप you must have understood so far. Now let us move ahead, my dear students. Oh yes, she said, let's go for a little walk. Only you must tell me about things. हाँ बिल्कुल, why not? उसने कहा कि चलो let's go for a little walk, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, बट केवल तुम्हें आपको मुझे यू ओनली हैव गॉट टू गाइड मी एंड कीप टेलिंग मी अबाउट द थिंग्स, कि मुझे बस बताते रहना कि कहाँ क्या चीज़ है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, कि मुझे बड़ी खुशी होगी व्हेन द डे इज़ ओवर, जब ये दिन ख़त्म हो जाएगा। The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. अब वो एक्सपीरियंस है जो कि अपने पैर को एक रस्सी से बांधना एंड विद द हेल्प ऑफ क्रच जस्ट कीप मूविंग अहेड, वो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि देखिए जितना मीन्स जो वर्स्ट एक्सपीरियंस आज का है वो बाकी दिनों में नहीं होता, वो तो एक तरीके से फ़न होता है। इसने बताया कि मीन्स जब मीन्स हैविंग अ लेग टाइड अप, कि जब
पैर में रस्सी बंधी होगी और आगे जंप करना, क्रच की हेल्प से आगे बढ़ना. इट्स लाइक अ फन. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ मिड मोर ट्रबलसम, कि जब हमें हाथ बांधना पड़ता है, सो दैट्स ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम, दैट ऑल्सो क्रिएट्स ट्रबल, बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना किसी हेल्प के खा नहीं सकते. एंड थिंग्स लाइक दैट, चीज़ें सब ऐसी ही हैं. आई डो नॉट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, कि अब देखिए वो कहता है आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, कि मुझे नहीं लगता कि जब आप डेफ बनते होंगे या आपको सुनाई, मीन्स व्हेन इट इज़ योर डेफ डे, जब आपको मीन्स वंस यू आर अनेबल टू हियर द थिंग्स, लिसन टू द थिंग्स, एटलीस्ट नॉट मच. वो कहते कि इतना बुरा नहीं होता, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना दैट इज रियली टेरिबल. माई हेड एक्स ऑल द टाइम, सर में दर्द रहता है हमेशा. जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई गेट हर्ट, क्योंकि हम मीन्स वी कीप फीलिंग, वी कीप सेंसिंग दैट समहाउ वी गेट हर्ट बाय समवन, बाय समथिंग, कि कहीं ना कहीं हम किसी न किसी से हर्ट जरूर हो जाएंगे. ऑल राइट, वेयर आर वी नाउ, हम अब कहाँ हैं. सो माई डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टॉप दिस हियर and enough for the day. The rest part of this chapter will be taken next time. I hope you must have understood. Thank you very much.